We'll see the examples which are related to the weaving preparatory and weaving. Till now, we have covered the numericals based on spinning technology. In this unit, majorly, we are going to see the numericals based on weaving preparatory. So examples related to the winding, then warping, sizing. These examples we are going to cover. First of all, we'll start with the numericals based on winding rate. Write down this example. A double flange bobbin is wound on a vertical spindle rotating at 900 rpm. The center has a dia of 4 cm and maximum bobbin dia is 12 cm. The yarn is wound with a slow traverse. How does the winding speed vary from an empty to a full bobbin? First, write down this example. We'll wait for a minute and then we'll discuss regarding this. Okay. I hope you have written the example. What is given here? A double flanged bobbin is there, right, which is wound on a vertical spindle rotating at 900 rpm. Right. The center has a dia of 4 cm. Right. The center portion of the bobbin, which has a dia of 4 cm, and maximum diameter you can able to wind the material is 12 cm. If you have applied a slow traverse, then how does the winding speed vary from empty to a full bobbin? They have asked. First of all, we'll try to understand what they want to tell. So that is a double flanged bobbin. It means what? It has a 2 flanges. This is a flange, and say this is the middle portion of the bobbin. That is another flange. So this is the bobbin actually. On this bobbin you have to wind the yarn. Why have shown here vertical bobbin? Actually, because in this case they have used vertical spindle. Means what? Spindle is like this, and onto which the bobbin is there, right? Onto which the bobbin is there, and this is revolving. So the bobbin is revolving. That's why I shown like this. Okay. Now what you are doing? You are winding a yarn.
on the bobbin. This is the winding of the yarn parallel wound package, right? The traverse what you have given is the slow speed traverse. We can say this is the traverse, slow traverse, right? So as it moves from this point to this point, your material is going to wind over the bobbin. So initially the diameter of the package is 4 सेंटीमीटर. मीन्स जब आप बॉबिन को ऐसा प्लेस करते हो स्पिंडल के ऊपर, तो इनिशियली आपका बॉबिन क्या एम्प्टी है, तो उसके ऊपर यान अभी तक आपने वाइंड नहीं किया है. तो उस टाइम का डायमीटर कितना है पैकेज का, तो 4 सेंटीमीटर है. उस टाइम क्या डायमीटर हो सकता है, जो आपका बॉबिन है, एम्प्टी बॉबिन है, उसका जो बैरल डायमीटर है वही उसका डायमीटर रहेगा. ये आपका बॉबिन है, दिस इज योर बॉबिन. तो ये जो डायमीटर रहेगा वही पैकेज का डायमीटर रहेगा इनिशियली व्हेन इट इज एम्प्टी, which will be 4 centimeter. And when you pull the bobbin, that time diameter will be 12 centimeter. तो अभी क्या किया आपने, मटेरियल को भर दिया, है ना, फुल हो गया मटेरियल इसके ऊपर. In that case the diameter is 12 centimeter. Initially the diameter is 4 centimeter. तो क्या पूछा है उन्होंने, वाइंडिंग स्पीड कैसे वैरी होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एम्प्टी टू फुल बॉबिन. How does the winding speed vary from empty to full bobbin? So in order to know the variation, right, it is necessary to calculate the winding speed. It is necessary to calculate the winding speed. Right. So how you will calculate this winding rate? How you will calculate this winding rate? Winding rate is equal to very simple. We will calculate the pi dm. We will calculate the pi dm of this bobbin, है ना. तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये pi dm निकाल सकते हैं क्या? pi dm कब निकालना पड़ेगा आपको, when the package is empty, and also you have to calculate the winding rate when the package is 12 centimeter. When the package is 12 centimeter. So initially we'll calculate when the package is 4 centimeter. So winding rate at 4 centimeter package dia is equal to pi dn. Pi is constant. T is how much? फोर. रिप्लाई करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको समझा है कि नहीं. डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड स्पीड n इज हाउ मच. इस बॉबिन को कौन घुमा रहा है, स्पिंडल घुमा रहा है ना. तो उसका जो स्पीड है वही रहेगा, इसका कितना रहेगा, 900 आरपीएम. अब हमें वाइंडिंग रेट निकालना है मीटर्स पर मिनट में. एक्चुअली वाइंडिंग रेट अपने को किस में निकालना है, मीटर्स पर मिनट.
सेंटीमीटर पर मिनट में भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है, हम मीटर्स पर मिनट में निकालेंगे। मीटर्स पर मिनट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया था डायमीटर, तो सेंटीमीटर आया था डायमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल डिवाइड इट बाय द 100, so it will get converted into the meters per minute, it will get converted into the meters per minute. So when we do this calculation, जब हमें करेंगे तो आपको आंसर आएगा, कितना आता है वाइंडिंग रेट, ओके 113.0 113 मीटर पर मिनट, 113 मीटर्स पर मिनट। अब ये निकल गया व्हेन बॉबिन डाई इज 4 सेंटीमीटर। नाउ विल कैलकुलेट द वाइंडिंग रेट when package die is 12 centimeter, when package die is 12 centimeter. Again I will use the same formula here. So here pi constant, d is 12, n is 900 divided by 100, that is just for calculation, meters per minute. So what answer you will get? 339.02. कितना था? 339. 339.2. 339.2. 339 we can write 339 मीटर्स पर मिनट। आप जो भी आया हो डेसिमल में लिखा करो, प्रॉब्लम नहीं, 4 डेसिमल तक लिखने का कौन सा भी आंसर, अगर आपको दिक्कत है। मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है दो स्पीड देख के, दो वाइंडिंग रेट देख के क्या लग रहा है आपको? हाउ डज द वाइंडिंग रेट वेरी फ्रॉम एम्प्टी टू फुल? उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक बीच का ले लेंगे, एक 4 का हो गया, 12 का हो गया, सपोज हम मान के चलते हैं कि 8 सेंटीमीटर का भी लेके चलते हैं, 8 सेंटीमीटर का भी लेके चलते हैं। सो विल कैलकुलेट फॉर 8 सेंटीमीटर आल्सो। यहीं पे निकालता हूँ मैं वाइंडिंग रेट एट 8 सेंटीमीटर, कितना आता है निकाल के बताओ मुझे आप। टू 6.08. 226.08 मतलब 226 आरपीएम, सॉरी मीटर्स पर मिनट, 226 मीटर्स पर मिनट। अब हम एक चार्ट निकालते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि हाउ डज द वाइंडिंग स्पीड वेरी। यहाँ पे एक चार्ट निकालेंगे, ये रहेगा एक्स एक्सिस पे बॉबिन डायमीटर, और यहाँ पे क्या रहेगा वाइंडिंग रेट, यहाँ पे रहेगा वाइंडिंग रेट इन मीटर्स पर मिनट। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा इसके लिए हम चार्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने पूछा हाउ डज द वाइंडिंग स्पीड वेरी फ्रॉम एम्प्टी टू फुल, तो ये शो करने के लिए हमें चार्ट निकालने की जरूरत है। सो ऑन एक्स एक्सिस विल टेक बॉबिन डायमीटर, ऑन वाई एक्सिस विल टेक बॉबिन वाइंडिंग रेट। तो हम 3 बॉबिन डायमीटर लेते हैं यहाँ पे जो हमने लिए थे, है ना, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, राइट। 4 सेंटीमीटर को कितना आया था आपका, सपोज मान के चलते, ये आप निकाल दो आप आपके हिसाब से, यू नो हाउ टू ड्रॉ द चार्ट। अब मान के चलते 113 यहाँ पे है,
8 सेंटीमीटर के लिए 226 यहाँ पे है और 12 सेंटीमीटर के लिए 339 मान के चलो यहाँ पे है. So I will join the coordinates. So what conclusion I will get? So very simple conclusion we can able to plot here. That is, as bobbin dia goes on increases, winding rate is also increases. Winding rate is also increases. That will be our conclusion. That will be our conclusion. So this is how we can solve this example. बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये. इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है. नाउ we'll see another numerical. So this is the solution actually. Write down this example first. Okay. So what is given here? What is the question? A constant winding rate of 200 meters per minute. A constant winding rate of 200 meters per minute is required with a double flanged bobbin. Determine the constant of the equation winding RPM into bobbin dia is equal to constant. So that is the given thing. Calculate the spindle speed at diameters of 4, 6, 8, 10 and 12 centimeter and plot the spindle speed against the bobbin diameter. ये पूछा है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगेन वाइंडिंग रेट उन्होंने बताया, कितना बताया? 200 मीटर्स पर मिनट है, कांस्टेंट है 200 मीटर्स पर मिनट. तो उन्होंने पूछा है सबसे पहले कि कांस्टेंट फाइंड आउट करो. कौन से इक्वेशन का? द इक्वेशन इज वाइंडिंग आरपीएम इनटू बॉबिन डाया इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये इक्वेशन दिया है उन्होंने, है ना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका कांस्टेंट निकालना है अपने को. वाइंडिंग आरपीएम इनटू बॉबिन डाया इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट निकालना है अपने को, कांस्टेंट निकालना है. तो इसके लिए अपने पास है क्या? कुछ दिया है क्या इसके लिए? वाइंडिंग आरपीएम दिया है क्या? बॉबिन डाया दिया है क्या? तो बॉबिन डाया तो दिए है ना. 4, 6, 8, 10, 12. As this is a constant, it means what? This constant is applicable for all the diameters. As this is the constant, this constant is applicable for all the diameters. So I can take any diameter here to find out the constant. I can take any diameter to find out the constant. So initially I will take 4 centimeter diameter of the bobbin to find out the constant.
So now I know the bobbin diameter, but I don't know winding RPM. I don't know winding RPM. So I will calculate the winding RPM. I will calculate the winding RPM. अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था. देखा था. कैसे निकलते हैं वाइंडिंग आरपीएम? आईडीएन आईडीएन है ना. वाइंडिंग रेट का एग्जांपल देखा था हमने. वाइंडिंग रेट इज इक्वल टू पाईडीएन. यहाँ पे तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू, यही निकालना है ना आपने को, आरपीएम यही निकालना है एन. सो यहाँ पे लिख सकते हैं वाइंडिंग रेट किसमें है. वाइंडिंग रेट यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर लिया तो भी चलता है, मीटर लिया तो भी चलता है. यहाँ पे हम सेंटीमीटर में ले लेंगे. सेंटीमीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय ये वाइंडिंग रेट है ना, तो पाई डी यहाँ पे जाएगा. पाई डी तो ये निकलेगा वाइंडिंग रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट. वाइंडिंग रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट कितना है? ये 200 मीटर पर मिनट है. मैं जानबूझ के उसको सेंटीमीटर में ले रहा हूँ. आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, कुछ बच्चों को आता नहीं, इसलिए बुक के साथ में जा रहा हूँ. 200 मीटर्स पर मिनट है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. 200 इंटू 100. अगर ये आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा इसको ले लो मीटर्स पर मिनट में. अगर मीटर्स पर मिनट लेना ही है तो कितना है? 200 है वो. डिवाइडेड बाय पाई इज कांस्टेंट इंटू डायमीटर इज हाउ मच? 4. बट दैट इज सेंटीमीटर. बट यहाँ पे हमने मीटर लिया है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 4/100 तो वही होता है वो. वही होता है 200. ये 100 ऊपर जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 4. सो व्हाट आंसर विल गेट? टेल मी. क्या था आंसर? 1591.54. 1591.5 मतलब 1592 रिवॉल्यूशन पर मिनट. आपके पास एन आ गया. अभी अब कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं. एन आ गया. बॉबिन डायमीटर पता है, कांस्टेंट निकालेंगे अभी. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे वाइंडिंग आरपीएम कितना आया? 1592 इंटू बॉबिन डाया इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट. कितना आ गया कांस्टेंट अभी बताओ मुझे? कितना था कांस्टेंट? 6368. 6368. तो ये आ गया आपका कांस्टेंट. ये आ गया आपका कांस्टेंट. अब हम क्या निकालेंगे? कांस्टेंट आपका आ गया. अब आगे क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड एट डायमीटर्स 4, 6, 8, 10 एंड 12. तो स्पिंडल स्पीड हमें निकालना है इन डायमीटर्स के ऊपर. तो हम निकालेंगे स्पिंडल स्पीड. अब क्या करेंगे हम? अब कांस्टेंट का यूज करेंगे हम. अब कांस्टेंट का यूज करेंगे, है ना. तो सीधा है कांस्टेंट का यूज करेंगे. तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? देखो, वाइंडिंग आरपीएम आपको निकालना है, मतलब स्पिंडल स्पीड ही निकालना है आपको. स्पिंडल स्पीड निकालना है. यहाँ पे देखो ये निकालना है. फॉर्मूला कैसे चेंज होगा ये निकालना है. तो ये बॉबिन डाया नीचे जाएगा. कांस्टेंट बाय बॉबिन डाया. ठीक है. अब यहाँ पे कांस्टेंट अपना है 6368. बॉबिन डाया 4 है क्योंकि
स्पिंडल स्पीड हमें कहाँ पे निकालना है? एट 4 सेंटीमीटर diameter of bobbin, at 6 centimeter diameter of bobbin, at 8 centimeter likewise. So initially I will calculate for 4 centimeter. So when we do this, what answer you will get? जल्दी जल्दी बताओ. 6368 by 4 कितना आता है? आंसर है यहाँ पे, यही आने वाला है. कितना आता है आंसर? कितना आता है क्या? कितना आना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल लिया है यहाँ पे ऑलरेडी. ये 4 सेंटीमीटर के लिए ही है आरपीएम, निकाल लिया है. तो 6368 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1592. अब हम स्पिंडल स्पीड हम स्पिंडल स्पीड निकालेंगे एट 6 सेंटीमीटर डाया, बॉबिन डाया. वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 6. कितना आता है? अब जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम लगेगा तो कैसा होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए. सिक्स सेंटीमीटर कितना आता है स्पिंडल स्पीड? मुझे बोल के बताओ, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है. फिर से मुझे वो इधर जाना पड़ता है, फिर मैसेज दिया है कि नहीं वो देखना पड़ता है. Some of you have given the answer here 1061, right? For 8 centimeter how much is the speed? वही करना है ना, कांस्टेंट डिवाइड बाय 8 करना है. अभी क्या करना है उसमें? कितना आता है? 796. At 10 centimeter 636.8. 636.8 मतलब 637. At 12 centimeter 530. 530. तो आपके पास अब 5 स्पीड आ गए है ना. जो रिक्वायर्ड थिंग था वो हमने निकाला अभी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? प्लॉट द स्पिंडल स्पीड अगेंस्ट द बॉबिन डायमीटर. हम निकालेंगे. ये बॉबिन डायमीटर, यहाँ पे स्पिंडल स्पीड. 4 6 8 10 12. 4 सेंटीमीटर जब डायमीटर रहता है तो सपोज ये है 1592 आरपीएम. 4 6 8 10 12. 6 के लिए 1061 मान के चलो ये है. 8 के लिए 796 मान के चलो ये है. आप बराबर निकालो, मैं जैसे निकाल रहा हूँ ऐसे मत निकालो. आप ग्राफ पेपर के ऊपर निकालना है. अगर आपके पास अभी नहीं है तो बाद में ग्राफ पेपर लेके इसके ऊपर निकालो. 637 और 12 सेंटीमीटर के लिए 530. So when you join these points, what answer you will get? As bobbin diameter increases, spindle speed reduces. As bobbin diameter increases, spindle speed reduces. ये सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़े हैं. मैंने आपको पढ़ाया वाइंडिंग जब पढ़ा था. ट्रैवर्स के बारे में जब मैं बता रहा था, that time I have already told this. But now we have seen this practically by taking the examples. So as you goes on increasing the bobbin diameter, spindle speed will get reduced. Okay, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगर कांस्टेंट के साथ नहीं निकालना चाहते हो
कांस्टेंट तो निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है, बट आगे वाले स्पिंडल स्पीड आपको कांस्टेंट से नहीं निकालना है, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे 1592 आ गया, वैसे ये 1061 भी आता है। आप यूज करके देखो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 यू टेक हियर 6, instead of 6 you take here 8, instead of 8 you take here 10, instead of 10 you take here 12. You will get these results, but it will take time. Every time you have to calculate this, so it is better to go with the constant, right? It is better to go with the constant. Okay. So in this way you have to solve this example.